Hello बच्चों, good morning. So today we are going to study the basic mathematics which is used in NEET, JEE, Olympiad सभी के लिए फिजिक्स पढ़ने के लिए बेसिकली जो भी बेसिक मैथमेटिक्स में हमें यूज़ होने वाला है वो सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज बेसिक मैथमेटिक्स. Basic mathematics, okay, in which first we will study trigonometry, okay. Then second we will study algebra. Then we will study calculus, which is very commonly used in physics, like differentiation, integration, how to find maxima and minima values and all. Then we will study logarithms, okay. अलजेब्रा के साथ साथ हम लोग बाइनोमियल भी देखेंगे यहाँ पे, बाइनोमियल थ्योरम, okay. Fifth will be graph, the most important thing, very important is the graph, because in physics you are supposed to ask any graph like force versus distance, force versus time, momentum versus time and all. So let us start with the trigo. So basically there are how many types of triangles? So on the basis of side there are three types, and on the basis of angle there are three types, you know very well. Acute angle, obtuse angle, right angle triangle. The most important is right angle triangle, okay. Also there are equilateral, isosceles and scalene triangles. So we are going to study right now right angle triangle. So this angle will be 90 degree, okay. So for this, suppose we are considering that angle is the theta. If this is theta, then if this is theta, then this will be perpendicular, this is base and that is hypotenuse. All right. So in this we can use the Pythagoras theorem, like h square equal to p square plus b square. And for this type of angle we can define the T ratio. T ratio क्या होता है? Trigonometric ratios. So for this we have to write tan theta, okay, sin theta. What is sin theta? It is p by h, okay. What is cos theta? It is b by h. What is tan theta? It is p by b, okay. And the reverse is also possible, inverse of this, like cosec theta h by p, sec theta that is h by b, and cot theta that is p by b. So to proceed further we need to understand how angle is measured, okay. So what is angle? The next thing is what is angle. So suppose we have a line, a ray OA, and it is rotated in anti-clockwise like this. This rotation is anti-clockwise, so it will make a arc, okay. So it is arc length, suppose it is L, and the length of this is R. So this will be also R because we are rotating it, and the angle is theta. So you have to remember this thing, anti-clockwise rotation is taken as positive, while clockwise rotation is taken as negative, okay. So this is the angle, and how we can relate this length with the radius and angle. So arc length is always given by radius into angle. This angle should be in radian. What is radian? So radian is the SI unit of angle, okay. Radian is the SI unit of angle, all right.
So for this, we have defined two types of units we commonly used. One is radian and other is degree. So how these are related? So for this, we can say that 180 degree is equal to pi radian. 180 degree equal to pi radian. So you can write it 180 into 1 degree equal to pi radian. Okay, so you have to find this thing. So it will be pi upon 180 radian. I'm using the short form RAD, rad. This we can use for the conversion. If we are converting anything in radian to degree or degree to radian, we can use this formula. Next is, if there is 180 degree equal to pi radian, so also we can write pi into 1 radian, which is equal to 180 degree. So 1 rad will be 180 upon pi degree, which you can use 180 upon 3.14 as the value, and that will be approx 57.3 degree. All right, so by this method you can convert the angles. So this is the formula we will use. Okay, so this is the basic of angle, like anti-clockwise is taken as a positive, and this is only sign scheme, nothing else. Okay, so we know already sin theta is perpendicular upon hypotenuse, cos theta is base upon hypotenuse, and perpendicular upon base. So if you have the values like this, tan theta equal to 2 by 3, so you have to find sin theta and all, but before this we have to study some basic things like degree to radian conversion. Degree to radian conversion. So first question is 90 degree को हमें convert करना है radian में. Second is 45 degree in radian, and third is suppose 135 degree into radian. So how we will solve it? So here is 90 degree, so you can write 90 into 1 degree. And what is the value of 1 degree? In last slide हमने देखा था कि 1 degree is pi upon 180 radian. So it will be pi by 2 radian, or you can simply say pi by 2. It's understood, right? You can also say it is pi by 2. So for 45 degree, you can also write 45 into 1 degree. So it is 45 into pi upon 180, which will be pi by 4. Rad you can write. So 135 into 1 degree, that will be 135 into pi upon 180. This is 3 times, 4 times. So it is 3 pi upon 4 rad. Okay. Next, radian to degree. Suppose you have pi by 12 rad, and you have to convert it in degree. Okay, so you have to write pi by 2 into 1 radian. And what is the value of 1 radian? Pi by 2 into 1 radian is 180 upon pi degree. So it will be 90 degree. Okay, oh sorry, it's 12 now, it's 12, sorry. So for this you have to do this like this. So it will be 15 degree. 15 degree, यहाँ पे 12 था, मैंने 2 ले लिया था, that was mistake. Okay, so suppose you have to convert pi by 3 radian. Pi by 3 radian, so you have to write pi by 3 into 180 upon pi, which will be 60 degree. Which will be 60 degree. In the similar fashion, you can convert the following angles into the degree. You can do it by yourself. What is the value of 2 pi in degree? Pi, pi by 2, pi by 3, pi by 4, and all. Okay, so
आप वीडियो को रोक के यहाँ पे कन्वर्जन कर सकते हो. दिस विल बी 360 डिग्री, this will be 180 degree, this will be 90 degree, this will be 60 degree, this will be 45 degree, this will be how much? 36 degree, this will be 30 degree, and that will be 120 degree. So this is how you can convert, and physics में ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो आपको इसको ध्यान से सीखना चाहिए. या आप कन्वर्ट करके मुझे बता दो इन रेडियन, नथिंग एल्स. इसको आप 2 पाई लिख सकते हो, इसको पाई लिख सकते हो, इसको पाई बाई 2 लिख सकते हो, इसको पाई बाई 3 लिख सकते हो. दैट विल बी पाई बाई 4, पाई बाई 6 एंड 2 पाई बाई 3. If you are confused, then use the original method. 1 degree equal to pi upon 180 and 1 radian equal to 180 by pi and all. Also, there are some angles in minute and all. So minute relation, minute hour में भी दिया होता है. So 1 degree equal to 60 minutes. This is minutes. Okay, we can say 60 minutes. 60 minutes. And you know 1 minute equal to 60 seconds. 60 seconds. So you have to write like this. 60 seconds. Okay, so we have to convert these thing and relate seconds and degree. So if this is 1 degree is 60 minutes, we can add 60 into 1 minute, right? 60 into 1 minute. So how you will find seconds? Okay, so 1 minute equal to 60 seconds, so it will be 3600 seconds, which you can write 3600 into 1 second. So the value of 1 second in degree will be 1 degree upon 3600. Okay, so इसका आपको PDF मिल जाएगा जिसमें आपको कन्वर्जन करना होगा. Okay, so suppose कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे. Suppose you have to convert in degrees. क्वेश्चन है, सपोज वी हैव 44 डिग्री 30 मिनट एंड 15 सेकेंड्स. इसको मैं पूरा डिग्री में लिखना है या रेडियन में भी पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर मुझे डिग्री में चाहिए, सो वी हैव टू राइट 44 डिग्री प्लस 30 मिनट प्लस 15 सेकेंड्स. इस तरीके से आप लिखिए. ऑलरेडी 44 इज ऑलरेडी इन फॉर्म जो हमें चाहिए, तो 44 को आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, 30 सेकेंड को आप 30 मिनट को चेंज करना है. सो वी नो वेरी वेल 1 degree equal to 60 minutes, so 1 minute will be 1 degree by 60. Okay, so you can write 30 into 1 minute, that is 30 into 1 degree by 60. So it is 1 by 2 means 0.5 degree. 15 को आप चेंज कर दो, 15 इंटू 1 सेकेंड्स. 1 सेकेंड्स को हम मिनट में कैसे लिख सकते हैं? अभी भी बताया था आपको कि 1 डिग्री 60 मिनट होता है, 3600 सेकेंड होता है. तो 1 सेकेंड इज 1 बाई 3600 डिग्री. हैव अ लुक हियर. 1 degree equal to 60 minute equal to 60 second equal to 60 into 60 seconds. So 1 second will be 1 degree by 3600. All right. So you have to do 15 into 1 by 3600 degree. It is degree. Okay. So you can calculate the value here. The value will be something like in fraction it will come 0.041. So it is 0.041 degree. So now what you have to do, you have to just add all 0.5 degree plus 0.04.
so it will be 44.5054 degree. So how you can convert the angle into degree or in required, if required, in radian. Okay, the next is four quadrant rule. Four quadrant rule is called also as TC rule, या फिर हम इसको बोल सकते हैं add sugar to coffee rule. What is the meaning of this? Is all. S मतलब sin and cosec, इसका मतलब है cos and sec. What is the meaning of it? Suppose this is the quadrant system, this is first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant and this is fourth quadrant. So first quadrant हमारा 0 से 90 तक होता है, second quadrant is 90 to 180 and 180 to 270 and that will be 270 to 360. What is the meaning of all here? Is all means all t ratios are positive, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, सेक हो और कॉसेक हो, ये सब पॉजिटिव होगा. बट इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एंड कॉस, ओनली साइन एंड कॉसेक is positive and rest negative. In third quadrant it is started with t, so it is tan and cot. So only tan and cot theta is positive, rest is negative. What is the fourth quadrant? C, for cos and sec is positive, rest negative. So suppose someone asked you what is the value of tan 120 degree. So you have to think 120 lies in second quadrant and second quadrant में हमारा सिर्फ sin and cosec पॉजिटिव होता है, तो tan क्या होगा? निगेटिव. तो चाहे कोई भी वैल्यू रहे हमारा आने वाला क्या है? निगेटिव वैल्यू. सपोज आपको बोला गया कि cos 120 निगेटिव वैल्यू, सो यू कैन डिटरमाइन ओनली पॉजिटिव वैल्यू होगा कि नेगेटिव वैल्यू होगा. ऑल्दो ऑल द फंक्शंस आर रिपीटेड, साइन रिपीट करता है 2π के बाद अपने एंगल को, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे. बट ये आपको ध्यान रहना चाहिए, इसके लिए हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है ऐड शुगर टू कॉफ़ी. ऐड क्या हो गया हमारा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में शुगर मतलब साइन से स्टार्ट हो रहा था, साइन और उसका अपोजिट वाला कॉसेक भी होगा, टेन एंड कॉट भी होगा, उस तरीके से. सपोज ओके पहले कुछ वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ. कुछ वैल्यूज़ आपको बेसिक लेवल पे याद होना चाहिए, ठीक है. लाइक 90 डिग्री तक वैल्यू याद होना चाहिए. जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होगी, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होगी, टेन 0 की वैल्यू 0 होगी. साइन 30 इज़ 1/2, कॉस 30 इज़ √3/2, टेन 30 इज़ 1/√3. 37, देखो साइन 37 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. इफ दिस इज 37, दिस विल बी perpendicular, this will be base and this will be hypotenuse for this angle. But for this angle this will be perpendicular, this will be base and this will be hypotenuse. तो ये आपको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है. तो ये वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है बच्चों. साइन 37 की वैल्यू 3/5 और यही वैल्यू हो जाएगी कॉस 53 की. ओके, साइन 53 की वैल्यू हो जाएगी 4/5 और यही वैल्यू हो जाएगी कॉस ऑफ 37. ऑल्दो अभी आपको दिक्कत आ रही है, बट मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा ग्राफ के थ्रू आप कैसे सारे एंगल्स को याद रख सकते हो. जैसे कोई किसी ने बोले साइन 240, तो फिर हम वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं, हम नहीं बता पाते. बट ग्राफ पे कमांड होगा तो आप लोग इजीली बता पाओगे. वो मैं लास्ट में बताऊंगा वीडियो के कि कैसे याद रखना है. ऑल्दो tan 37 you know, tan theta is sin by cos and tan 53 is 4/3. तो ये 6 वैल्यू आपको फिजिक्स में तो याद होना ही चाहिए, ठीक है. यहाँ पे आते हैं. साइन 37 इज 3/5, कॉस 37 इज 4/5 एंड tan 37 इज 3/4.
45 is 1 by root 2. It is also 1 by root 2, and tan 45 is 1. Sin 53 is 4 by 5. Cos 53 is 3 by 5. एंड tan 53 इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 4 by 3. Sin 60 is root 3 by 2. Cos 60 is 1 by 2, and this is root 3. 90 sin 90 is 1, this is 0, and tan 90 is undefined या फिर infinity आप बोल सकते हो या undefined बोल सकते हो इसको, undefined. ओके मतलब 1 by 0 होगा. कुल मिला के बात यह है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू बहुत छोटी होगी उस तरीके से. ठीक है, अब देखो आप एक पैटर्न आपको इसमें दिखेगा. अब 120 150 की भी वैल्यू बता पाओगे अगर ये आपको ध्यान रहा तो. सो पैटर्न क्या है बच्चों, व्हाट इज द पैटर्न? जो साइन 0 की वैल्यू है वही cos 90 की वैल्यू होगी. और ये देखो इस तरीके से मिक्स हो रहा है, दिस टू दिस. अब ये देखो कि ये दोनों बराबर हो रहा है. जो वैल्यू यहाँ पे है वो वैल्यू यहाँ पे है, जो वैल्यू यहाँ पे है जो वैल्यू वहाँ पे है. 1/2 की जो वैल्यू है ये यहाँ पे मैच कर रहा है और ये यहाँ पे मैच कर रहा है. तो सब कुछ अपोजिट 90 के चल रहा है. जो वैल्यू sin 30 की होगी वो cos 60 की होगी, जो cos 30 की होगी वो sin 30 की होगी, जो sin 37 की होगी वो cos 53 की होगी. तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो और कुछ रिलेशंस भी इसमें है उससे भी आप ध्यान रख सकते हो. ओके नाउ इफ सपोज sin थीटा इज इक्वल टू 2/3, तो वैसे तो उसका डायरेक्ट मेथड होता है k टाइम्स एंड ऑल लिख के, बट यहाँ पे मैं वो सब नहीं करूँगा. सीधा sin थीटा इक्वल टू 2/3 है. आप इसको बोल दो this is p and this is h. So you know by Pythagoras h square equal to p square plus b square. So you need to find b square, that is h square minus p square. So h is 3 minus 2, 9 minus 4 which is 5. So b will be root 5. b will be root 5. अब आपसे पूछा है कि थीटा कितना होगा, तो थीटा साइन इनवर्स करके भी निकाल सकते हो, बट अभी अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे अदर रेशियोज निकाल रहे हैं. अदर रेशियो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो बच्चों कि थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स ऑफ 2/3. ठीक है, अभी के लिए बता रहा हूँ, ये आगे अपन क्लियरफाई करेंगे. अब जैसे हमारे पास p हो गया, h हो गया और b हो गया, so you can find anything like cos theta. So cos theta is b by h. So what is the value of b is root 5, h is 3. Tan theta is p by b, मतलब perpendicular by base, so perpendicular is 2 and base is root 5. In the similar way you can find any t ratios. Okay, so this is the way of finding. डिग्री में ये सब बता दिया आपको, आप कुछ प्रैक्टिस कर लेना. जो डीपीपी आपको मिली है उसमें गिवन है सॉल्यूशन के साथ, तो पहले आप बिना सॉल्यूशन के करेंगे. ये आपको बता दिया था, दिस इज लेंथ, सो लेंथ इक्वल टू r इंटू थीटा हम लिखते हैं. थीटा इज ऑलवेज इन रेडियन. और इसकी फाइल भी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, मैं पिन कर दूंगा. Suppose they have asked cos 120. So cos 120 कैसे आप कैलकुलेट करोगे बच्चों? वैसे इसकी वैल्यू होती है -1/2, बट आपको कैसे पता चलेगा? एक तो तरीका है ग्राफ से कर लो या एंगल सब्स्टिट्यूशन से कर लो. सो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, इसकी वैल्यू निकालने से पहले आपको ये सब पता होना चाहिए. बेसिक फॉर्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्री लाइक साइन a प्लस बी क्या होता है, cos a प्लस बी एंड ऑल. तो आप इसको याद रखेंगे कैसे, साइन a cos b प्लस cos a साइन b. ये देखिए फिजिक्स में क्या है, लॉजिक वॉजिक लगाइए. यहाँ पे मैथ में हमारी लिमिटेशंस है कि हमें कुछ चीज़ें ही आनी चाहिए फिजिक्स को एडवांस लेवल पे लेके जाने के लिए. वो सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं. यहाँ प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस. साइन a cos b minus cos a sin b. Cos a plus b is cos a cos b
माइनस साइन ए साइन बी। देखो कॉस में उल्टा चलता है, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी क्या होगा, दैट इज टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। इसकी वैल्यू हो जाएगी टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो ये आपको फॉर्मूला अगर याद नहीं भी है टेन वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, यू नो वेरी वेल। सो द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ से आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये आपको याद करना पड़ेगा बच्चों, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी एंड एवरीथिंग। ये जो 4 फॉर्मूले हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। साइन 2a, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, 2 साइन थीटा इंटू कॉस। ए है तो ए लिखना पड़ेगा हमें बच्चों, ए है तो हमें ए लिखना पड़ेगा, साइन ए इंटू कॉस ए। कॉस 2a इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। टेन 2a आप दोनों को क्या कर सकते हो, डिवाइड करके निकाल सकते हो। तो इसको मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि इसको याद कीजिए आप। कॉस 2 थीटा वही हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा अगेन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो ये दोनों वैल्यू तो रिपीट ही हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसके अलावा मैं आपको एक हाफ एंगल बताता हूँ, हाफ एंगल जो आपको ध्यान रखना चाहिए। सपोज देयर इज अ साइन थीटा, सो यू कैन राइट 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू cos theta by 2. In the similar fashion, cos theta can be written as cos square half angle minus sin square half angle। ठीक है, अगर इसकी ज़रूरत कभी पड़ रही है तो आप दोनों को डिवाइड करके भी ला सकते हो, दिमाग पे लोड लाने की ज़रूरत नहीं है। सो दीज फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे आपको कैलकुलेट करना था एक वैल्यू, वहाँ पे चलते हैं। ये वैल्यू निकालना था cos 120, यस cos 120। सपोज ये आपको पता नहीं है कि क्या होगा, सो यू कैन राइट ना cos 90 प्लस 30, cos 90 प्लस 30। एंड आपको वो फॉर्मूला आना चाहिए cos a प्लस बी इज cos a cos b माइनस sin a sin b. So here this is a, this is b, so you have to write cos 90 into cos 30 minus sin 90 into sin 30. So cos 90 is 0 बच्चों and cos 30 is root 3 by 2 minus sin 90 1 into sin 30 1 by 2। तो ये हो गया आपका 0 minus 1 by 2 which is minus 1 by 2। ओके, सो आप एडिशन रूल से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो, बट इन फाइनल आई विल शो यू द ग्राफ एंड विल लेट यू नो हाउ एग्जैक्टली यू कैन यूज द ग्राफ मेथड्स टू फाइंड एनी एंगल विच इज गिवन लाइक 300। ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते कि 310 का बता दो, तो अप्रॉक्स में बताना पड़ेगा, ठीक है। सो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो उसको। अब जैसे साइन 300 है, अब साइन 300 की वैल्यू कैसे निकालिएगा, तो इसके लिए आपको साइन 360 पता होना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि जो वैल्यू साइन 0 की होगी वही साइन 360 की भी होती है, क्योंकि साइन थीटा अपने वैल्यूज़ को रिपीट करता है। इस पर अगर साइन थीटा है, इसमें मैंने एंगल लिया हुआ है, सो दिस इज 0, दिस इज 90, दिस इज 180, दैट इज 270 एंड दैट इज 360। ओके, सो यू कैन राइट इट साइन 360 minus 60, and you know very well sin a minus b is sin a cos b minus cos a sin b। सो यहाँ पे आप a इसको ले लो, इसको b ले लो। सो sin 360 इंटू cos 60 माइनस cos 360 इंटू sin 60। सो दिस इज 0 इंटू 1/2 माइनस, अच्छा cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1,
वही वैल्यू 360 की भी होगी, क्योंकि कॉस भी उसी तरीके से चलता है, इस तरीके से। तो यहाँ पे 0 है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा 360, तो कॉस 360 की वैल्यू भी 1 होती है। तो 1 इंटू साइन कितना हो जाएगा √3/2। सो द आंसर विल बी -√3/2। आप इस तरीके से इसको फाइंड कर सकते हो। ओके, ये 210 आपको फाइंड करना है, ठीक है। अगर आप इसको फाइंड नहीं कर पा रहे हो इन केस, तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो, sin 210 अपॉन cos 210। इन द सिमिलर फैशन cos 135 आप निकाल सकते हो। यू हैव टू कैलकुलेट इट 90 + 45, और इसकी वैल्यू मैं ऐसे भी बता सकता हूँ, 90 से 45 है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये निगेटिव होता है, तो ये -1/√2 होगा, ठीक है। सही, ये सारी अदर वैल्यूज हैं जो आपको कैलकुलेट करनी है। 4π/3 है, इसका मतलब 240 आप यहाँ से लिख सकते हो, tan 240 की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। 2π/3 cosec 2π/3 का मतलब cosec 120, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/sin 120, 1/sin। तो कैसे निकालेंगे, ग्राफ से कैसे निकालेंगे बच्चों, तो इस पे साइन है अगर, उस पर थीटा है, तो दिस रन्स लाइक दिस। सो ये 90 से 30 आ गया, तो हियर इज 90, ओके। 90 से आप 30 आगे जाओगे और 30 पीछे भी जाओगे तो 60 मिलेगा आपको, ठीक है। दिस इज 120। तो यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो जो वैल्यू साइन 60 की होगी वही वैल्यू साइन 120 की होगी, मतलब √3 क्या हो जाएगी 2। इस तरीके से आप देख सकते हो सिमेट्री। 90 के आगे कितना गया 30, तो 90 के पीछे कितना गया 30, तो ये ऊपर है ग्राफ तो प्लस होगा, ठीक है। तो सेम वैल्यू यहाँ एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√3/2। सो द आंसर विल बी 2/√3। ऐसे कोई भी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, और फिजिक्स में कुछ जनरल वैल्यूज ही फाइंड करनी होती है, हर चीज़ फाइंड नहीं करनी होती है। जैसे यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो साइन 2π है बच्चों, सो 2 × 180 आप रख दो अपॉन 3, सो अगेन इट विल बी साइन 120। और अभी अभी निकाला हमने, और नहीं पता तो 90 + 30 करके भी कैलकुलेट कर सकते हो। साइन 2π की वैल्यू मैंने बोला ना 2π = 360, तो रिपीट होती है ना, तो cos 0 की जो वैल्यू होगी वही cos 2π की वैल्यू होगी, माने 1 होगी। साइन 2π की वैल्यू 0 होगी, साइन पाई की भी वैल्यू 0 होती है, cos π की वैल्यू -1 होती है। ये याद रखिए। कैसे पता चलेगा, तो देखो साइन ऐसे गया, यहाँ 0 होता है, यहाँ पे पाई होता है या 180 होता है, तो 0 मिल गया। कॉस की बात करोगे तो ये ऐसे जाता है ऐसे, सो ये दिस इज 90 और ये नीचे चला जाता है, तो दिस इज 180, तो -1, ओके। अब जैसे साइन 15 की वैल्यू निकालनी है, तो यू हैव टू डू साइन 45 - 30। यू कैन राइट साइन ए कॉस बी, साइन 45 cos 30 minus cos 45 sin 30. So it will be 1/√2 into cos 30 is √3/2 minus 1/√2 into 1/2. So when you will take the LCM 2√2, then that will be √3 - 1. इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। tan 75 you can use tan 45 plus 30, okay. So it will be tan 45 plus tan 30 upon 1 minus tan 45 into tan 30. This is 1 plus 1/√3, 1 minus 1 into 1/√3. So it will be √3 plus 1 upon √3 minus 1. Now the sin theta and cos theta की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ये आपको पता होना चाहिए। इसकी लिमिट 1 से लेकर -1 तक। cos थीटा की भी वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करती है बच्चों, -1 से 1 तक। मतलब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये ऐसे चलता है ऐसे, तो दिस इज 1 एंड दिस इज -1। थीटा
किसी भी वैल्यू को बिलोंग कर सकता है -∞ टू +∞ तक, बट ये रहेगा -1 से 1 के बीच में। ये भी इस तरीके से ही होगा, ये भी 1 और नीचे -1 के बीच ही एग्जिस्ट करेगा। ओके, अगर थीटा बहुत स्मॉल है, थीटा इज वेरी स्मॉल, सो क्या करेंगे, जैसे कभी कभी आए थे sin 2 डिग्री की वैल्यू बताओ, sin 3 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो ऐसे केस में थीटा वेरी स्मॉल का मतलब <7 डिग्री ऐसा कुछ, तो साइन थीटा को आप थीटा लिख सकते हो, टेन थीटा को भी आप थीटा लिख सकते हो, जबकि कॉस थीटा को आप 1 लिख सकते हो। तो ये याद रखना है आपको, साइन थीटा थीटा क्यों होता है ये भी बताऊंगा मैं आपको ग्राफ से। अभी के लिए ध्यान रखिए कि साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर टेन थीटा, और टेन थीटा साइन बाई कॉस होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो इसको थीटा लिखा तो इसको 1 लिखा तो वो बराबर होगा। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए साइन 2 डिग्री, वैल्यू ऑफ साइन 2 डिग्री यू हैव टू राइट 2 डिग्री, बट ये 2 डिग्री यूज नहीं होगा न्यूमेरिकल में, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इन रेडियन। सो 2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 degree is 180 radian, so you have to leave it like this, pi by 90 आप यूज कर सकते हो। in the similar way tan 1 degree, so you can write 1 into pi by 180। आपसे पूछा क्या cos 3 डिग्री की वैल्यू बता दो, तो सिर्फ 1 लिख देना। आपसे बोल दिया जाए cos 2 डिग्री की वैल्यू बता देना, तो 1 लिख देना, क्योंकि जब भी स्मॉल अप्रॉक्सीमेशन होता है तो ये सारी चीज़ें आती हैं। ओके, ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, लाइक इसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हो बच्चों, 0 - 120 करके सॉल्व कर लेना, इसको कॉस 0 - 60 करके यूज़ कर लेना, इसको भी tan 0 - 135 लगा के आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, या ऐसा भी बोल सकते हो कि माइनस डिग्री है तो माइनस का मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन, सो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले आएगा, तो उससे भी देख सकते हो। ओके, सम फ्यू टॉपिक्स लाइक इफ y इक्वल टू a साइन थीटा प्लस माइनस b कॉस थीटा, ऐसा कोई टर्म आ जाए, ठीक है, तो इसमें आपको मैक्सिमम पूछा जाता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, सो यू हैव टू जस्ट डू इट a² प्लस b² प्लस y मिनिमम आपसे पूछ लिया जाए तो सेम वैल्यू विथ नेगेटिव साइन, दैट इज a² प्लस b²। क्वेश्चन कैसा आ सकता है बच्चों, जैसे y इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, आपसे पूछा जाएगा कि y मैक्स बताओ भैया, तो क्या कर देना, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, हाउ मच इट विल बी 5। y मिनिमम आपसे पूछ लिया जाए, so -5 you have to write, -5, all right। So some more illustrations, like very important it is repeating value, that is sin 2n पाई प्लस थीटा जो होगा बच्चों वो हमेशा क्या होगा, साइन थीटा होगा। cos 2n पाई प्लस थीटा हमेशा क्या होगा, cos थीटा होगा, क्योंकि हर 2 पाई के बाद ये अपने को रिपीट करता है। सो tan 2n पाई प्लस थीटा भी क्या होगा, tan थीटा होगा, ठीक है। सो बेसिकली n इज इंटीजर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया 360 प्लस 30 डिग्री, तो यू कैन राइट इट सिंपली साइन 330 ओनली। 2n पाई का मतलब क्या है बच्चों, 2n पाई का मतलब 360 इंटू n की वैल्यू 1 2 कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे 360 इंटू 1 हो जाएगा, सो ये साइन 30। आपसे पूछा जाए कि साइन 360 प्लस 60 कितना होगा, डायरेक्टली लिख दीजिए साइन 60 होगा, ठीक है। आपसे पूछते तो ये तो वैल्यू आपको पता है ना बच्चों, ये तो वैल्यू पता है ना। वैसे ही आपसे पूछ लिया जाए कॉस मुझे 390 चाहिए, ठीक है, 390, तो आप सीधा लिख दो कॉस 360 प्लस 30 एंड विच विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ 30, मतलब √3/2।
इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। कोई भी बड़ी वैल्यू भी आप इस पर कैलकुलेट कर सकते हो। सपोज आपको बोला गया साइन 1110, अब देखने में तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है, तो आपको इसको थोड़ा लिखना होगा 2 पाई के मल्टीप्लीकेशन में, यानी 360 के मल्टीप्लीकेशन में। सो साइन आप लिख सकते हो इसको 1080 प्लस 30। अभी भी ये समझ नहीं आ रहा कि क्या है, सो वी हैव टू राइट 360 इंटू 3 प्लस 30। इसको लिख सकते हैं ना बच्चों, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो ये 2n पाई टर्म आ गया, सो इट विल बी इक्वल टू साइन 30, मतलब 1/2। ऐसे आप वैल्यूज को फाइंड कर सकते हो। अब मैं आपको लास्ट बता रहा हूँ, दैट इज ग्राफ। ग्राफ से कैसे हम किसी भी वैल्यू को जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इस पर हम साइन थीटा ले लेते हैं और इस पर ले लेते हैं थीटा। ओके, सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस, ऐसे रिपीट होता है, ठीक है। सो दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 90, दिस इज 180, दिस विल बी 270 एंड दैट विल बी 360। ये -1 होता है, 270 पे -1, 90 पे कितना 1। अब आपको कोई भी वैल्यू याद रखना है तो इस पूरे को 3 डिवीजन में कन्वर्ट कीजिए, 0 to 90 को, 1 2। सो इट इज़ 30 डिग्री, इट इज़ 60 डिग्री। इनके बीच में कितना होगा 45 डिग्री। इसको मैच कराइए यहाँ पे। साइन 30 यू नो वेरी वेल 1/2, साइन 60 यू नो वेरी वेल, इट इज़ √3/2, साइन 45 यू नो दैट इज़ 1/√2। सो यहाँ ये जहाँ जहाँ कट करेगा, जहाँ जहाँ कट करेगा वहाँ 1/√2 आएगा, ये जहाँ जहाँ कट करेगा वहाँ पे √3/2 आएगा, ये जहाँ जहाँ कट करेगा वहाँ पे 1/2 आएगा। सो आपको सोचना है कि ये 30 गया तो यहाँ से ये 30 पहले होगा, क्योंकि सिमिलरिटी देखो है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 150। तो इस सिमिलरिटी को देखते हुए मैं लिख दूंगा साइन 30 की जो वैल्यू होगी वही साइन 150 की वैल्यू होगी, मतलब 1/2। अब यहाँ से देखो 45 आगे, तो यहाँ से 45 पीछे कुछ यहाँ पे होगा वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 135। सो जो वैल्यू साइन 45 की होगी वही साइन 135 की होगी, यानी कि 1/√2। एंड यू नो कि फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। यहाँ पे हो जाएगी 120, ठीक है, 120। सो 120 यहाँ से 60 पहले है तो यहाँ से 60 ज़्यादा, मतलब जो साइन 60 की वैल्यू होगी वही साइन 120 की वैल्यू होगी, मतलब √3/2। ऐसे आप देख सकते हो। अब जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया कि मुझे 210 चाहिए, तो 210 180 के 30 बाद आता है, तो 30 पहले जो आएगा उसकी वैल्यू के बराबर होगा, बट नीचे जा रहा है तो साइन 210 को हम लिख सकते हैं -1/2। इस तरीके से। कोई यहाँ पे पूछ दिया कि नहीं मुझे 390 की वैल्यू चाहिए, तो आप देखो कि कितना 30 आगे गए हो, क्या ये सिमिलर नहीं है कि यहाँ से 30 आगे जाना, तो साइन और ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, सो साइन 390 विल बी 1/2। जैसे आपको 11110 पूछा गया था अभी, तो कुछ नहीं करना है, बस एक ग्राफ बनाना है ऐसा, सो आप देखो ये 360 हो गया, दिस इज 720, दिस इज 1080, यहाँ से कितना आगे जा रहे हैं हम 30 जा रहे हैं ना आगे, तो ये 1110 मिल रहा है, तो सीधा सीधा लिख देंगे साइन 1110 इक्वल टू 1/2। उतने साइकिल्स बना लो, कोई भी वैल्यू पूछा है, जैसे बोला जाए कि मान लो साइन 750 चाहिए, तो 750 आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, दिस इज 720 प्लस 30 होता है, तो 720 हमें कहाँ मिल रहा है यहाँ पे, यहाँ से 30 आगे गए, सिमिलर टू साइन 30, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। ऐसे ही हम कॉस के लिए भी यूज़ करेंगे, ठीक है, और साइन के लिए भी यूज़ करेंगे, और साइन कॉस पता चल गया तो tan तो आराम से निकल जाएगा। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री विच यू विल रिक्वायर्ड इन नेक्स्ट फिजिक्स क्लासेस। ओके, सो इस पे आप लोग एक नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाओ, और जो भी डाउट होता है हम उसको क्लास में देख लेंगे।